morning, class 11th. Today we are going to discuss question number 8 to 12 of miscellaneous exercise of chapter 2, that is relation and function. In the previous video we have already discussed question number 1 to 7. Now question number 8, let f is equal to, आपके पास यहाँ पे एक function given है f where the ordered pairs are 1, 1, 2, 3, 0, -1, -1, -3 be a function from z to z. That means इंटीजर्स से इंटीजर्स में आपके पास यहाँ पे मैपिंग चल रही है. Defined by f(x) is equal to ax plus b and the function is defined as ax plus b for some integers a comma b. किसी integers a comma b के लिए you have to determine the values of a and b. Given function f(x) is equal to ax plus b, f(x) is equal to y is equal to ax plus b. Now if we talk about this ordered pair, here the value of x is 1 and the value of y is 1. Now put these values, you will get y is equal to x plus b. On putting the value 1 comma 1, you will get equation a plus b is equal to 1. Similarly, now put the value 2 comma 3 in the equation, you will get a second equation, that is 2a plus b is equal to 3. In the class 10th you have already solved the linear equations. Now apply the elimination method to find out the values of a and b. 2 minus 1, equation 2 minus equation 1, 2a plus b minus a plus b is equal to 3, 1 minus 1, 2a plus b minus a minus b is equal to 2, 2a minus a you will get a, plus b minus b cancel out, you will get 0, so you will get a is equal to 2. Putting the values of a is equal to 2 in equation 2, you will get the value of b, that is equal to -1. So you will get both the values, a is equal to 2 and b is equal to -1. Now question number 9, let R be a relation from n to n. There is a relation R from n to n, that means from natural numbers to natural numbers. You have defined by the relation a comma b where ab belongs to n and a is equal to b square. You have given a relation in which you can get the ordered pair by using this relation, that is the value of a is equal to b square. Are the following true? Now your question arises, is this condition is true? So is a is equal to a square? If a is equal to b square, that means if we take a comma a, तो that means the a is equal to a square. आपके पास जो रिलेशन गिवन है, इसमें पहला क्वेश्चन तो उन्होंने यही पूछ लिया क्या ये रिलेशन सही है. उसके बाद आपको कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, क्या इस जो इन पार्ट्स को क्या सेटिस्फाई, ये जो पार्ट्स हैं ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, वो आपको बताना है. सबसे पहले तो हम इसका फर्स्ट पार्ट ही देखते हैं क्वेश्चन का, दैट इज़ दिस इज़ ट्रू और नॉट. आपके पास जो रिलेशन डिफाइन कर रखा है वो कर रखा है ए कॉमा बी. अगर मैं ए कॉमा बी में ए कॉमा ए ही ले लूँ तो मेरे पास डिफाइन होना चाहिए ए इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर. यही चीज़ यहाँ ली गई है. आपने क्या लिया कि इस ए इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर, क्या आप इसे चेक कर लो. अगर ये चेक करने पे ये आ रहा है तो इसका मतलब ये आपका रिलेशन सही है, अदरवाइज नॉट ट्रू. तो आपने 1 रखा तो आपके पास 1 आ गया. लेकिन आप जब पुट 2 करेंगे तो क्या 2 2 के स्क्वायर के इक्वल होगा? जी नहीं, 2 का स्क्वायर इज़ 4, तो 2 इज़ नॉट इक्वल टू 4. सिमिलरली जब आप 3 पुट करेंगे तो यू विल गेट 9, 3 इज़ नॉट इक्वल टू 9. हेंस ए इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर इज नॉट ऑलवेज ट्रू. नाउ फर्स्ट कंडीशन, दैट इज ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर. ए कॉमा ए आपका रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है. फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू एंड दैट इज़ योर नेचुरल नंबर्स. गिवन दे रखा है आपके पास ये रिलेशन. इसमें आपको क्या कर रहा है इस रिलेशन में, ए कॉमा बी इज इन रिलेशन आर. इफ़ कब होंगे ये रिलेशन में? अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे. पहली कंडीशन क्या है कि ए कॉमा बी बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर्स में, जिसमें बोथ ए और बी क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर्स होना चाहिए. और दूसरा क्या दे रखा है कि ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर के इक्वल हो. ए की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? बी स्क्वायर के. यानी कि ये रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए. हमें ये दोनों कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी. तो हमने पहला लिया, क्या ए कॉमा ए बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में? बिल्कुल करेगा. ए है तो ए कॉमा ए, यानी कि अगर 2 की बात की जाए तो 2 भी तो क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, तो ये तो बिलोंग कर रहा है. तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. अब नेक्स्ट है क्या, ए इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर की है, यानी ए इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर को है. वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड. अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा है कि ए इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर के नहीं आया था, तो ये कंडीशन तो इक्वल नहीं आ रही है. जब ये दोनों कंडीशंस इक्वल नहीं आ रही है तो क्या हम इसे ट्रू बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि ए कॉमा ए बोथ कंडीशंस आर नॉट ऑलवेज ट्रू. दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं. इससे जो स्टेटमेंट हमें गिवन है वो क्या होगी, एक फॉल्स स्टेटमेंट होगी. थर्ड पार्ट में दे रखा है कि ए बी बिलोंग करता है आर में और बी सी भी बिलोंग करता है आर में. हेयर आर इज़ योर रियल नंबर्स. अब मैंने बोला कि इसका मतलब ए कॉमा सी भी रियल नंबर्स में लाई करेगा. आपने लिया ए इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर, दूसरा लिया बी इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर, तो इसका मतलब ए इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर क्या आना चाहिए?
चलिए चेक करते हैं। आपने b की जगह 4 पुट करा तो a की वैल्यू किसके इक्वल है, b स्क्वायर के, यानी a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 के। और अगर आप देखें तो b किसके a किसके इक्वल है, c स्क्वायर के। तो यहाँ पे 4 इक्वल टू सी स्क्वायर, दैट मीन्स c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। यहाँ पे c की वैल्यू 2 आ रही है और यहाँ 16 है, तो क्या 16 और 2 का स्क्वायर कहीं इक्वल हो रहे हैं आपके पास, नहीं हो रहे हैं। तो आप क्या कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू बी स्क्वायर है, b इज इक्वल टू सी स्क्वायर है, लेकिन a इज इक्वल टू सी स्क्वायर के है, नहीं है। अब आपको इसे वेरीफाई करके देना है। हमारे पास जो पहली कंडीशन थी वो ये थी कि a कॉमा बी बिलोंग करता है R में और b कॉमा सी भी बिलोंग करता है R में। देखिए a कॉमा बी रिलेशन में है R के, a b क्या नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। a और b क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। a इज इक्वल टू बी स्क्वायर के है क्योंकि हमें ये चीज़ गिवन है, तो इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही हमें गिवन था b कॉमा सी बिलोंग करता है R में। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास b और c दोनों नेचुरल नंबर्स में और b और c जो होंगे दोनों नेचुरल नंबर्स होंगे। लेकिन और दूसरी कंडीशन ये सेटिस्फाई करेगा कि b किसके इक्वल है, c स्क्वायर के। अब ये तो हमें गिवन था, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ ये करना है ac के लिए कि a b अगर गिवन है, बी सी गिवन नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ए और सी भी क्या बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर्स में बिलोंग करेगा। अब सेकंड कंडीशन ये है कि अगर ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर के और बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर के, तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर के होना चाहिए। लेकिन हमने ऑलरेडी अभी यहाँ पे प्रूफ करा है कि ए जो है सी स्क्वायर के इक्वल नहीं है, यानी कि हमारी सेकेंड कंडीशन जो यहाँ पे दे रखी है ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अगर ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो हम क्या कह सकते हैं, सिंस बोथ द कंडीशंस आर नॉट ट्रू, हैंस ए कॉमा सी नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर्स है, तो गिवन स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, फॉल्स हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, आपके पास ए एलिमेंट्स के एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 3 4, बी में एलिमेंट्स है 1 3 5 11 16 और आपके पास फंक्शन डिफाइन कर रखा है 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11। आपसे पहली कंडीशन पूछी गई है क्या ये ट्रू है जो आपको यहाँ पे गिवन है, और दूसरा आपके पास पूछा गया है एफ इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, कि आपका एफ क्या है, रिलेशन है ए से बी में। तो आपके पास जो फंक्शन गिवन था ये गिवन था। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट्स देखते हैं। इसके फर्स्ट एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एंड 2 वापस रिपीट कर रहा है, तो आप क्या लेंगे 1 2 3 4। आपके पास आ गए फर्स्ट एलिमेंट। ऑल द फर्स्ट एलिमेंट आर इन सेट ए, आपके सारे के सारे एलिमेंट किस में है, सेट ए में है। नेक्स्ट बोला गया सेकंड एलिमेंट की बात करें तो वो आ रहे हैं 5 9 1 एंड 5। आपके पास आ गए क्या 5 9 1 और 11। अगर 5 9 1 11 देखें तो वो सेट बी में आपको मिल रहे हैं, तो यानी कि ये सारे एलिमेंट किस में है, बी में, तो इसका मतलब आपका ये रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 11, लेट एफ बी द सबसेट ऑफ जेड इंटू जेड, यानी कि जेड की मैपिंग जेड से हो रही है और एफ क्या है, उसका एक सबसेट है जिसे डिफाइन किया गया रिलेशन से ए बी, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर में जो पहली टर्म आएगी वो ए बी से आ रही है, जो सेकंड टर्म आएगी वो ए प्लस बी से आएगी। इसमें ए और बी दोनों किस में बिलोंग करेंगे, आपके इंटीजर्स से बिलोंग करेंगे। इस एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, अगर क्या एफ एक फंक्शन है जेड से जेड में, जस्टिफाई करिए अपने आंसर को। तो आपने क्या लिया, ये आपके पास गिवन है, इसमें ए बी क्या होगा, डोमेन होगा। ए बी आपके पास डोमेन है और ए प्लस बी क्या है, आपके पास रेंज है। तो आपने क्या करना है, आपने चेक करना है कि जो इनके ऑर्डर्ड पेयर निकल के आ रहे हैं क्या वो सही आ रहे हैं। तो आपने पहले क्या करना है, बोथ ए और बी और इंटीजर्स माना। आपने ए की वैल्यू पुट करी, बी की, आपने 0 0 पुट किया। 0 0 पुट करने पे ए बी आया 0 और ए प्लस बी आया 0। नेक्स्ट आपने पुट करा ए 0 और बी पुट करा 1। आपके पास ए बी आया 0 लेकिन ए प्लस बी कितना आ गया, 1 आ गया। नेक्स्ट आपने पुट किया ए बी वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 0, बी की रखी 2, तो ये हो जाएगा 0 इंटू 2 यू विल गेट 0, और ए प्लस बी 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या देखा आपने, जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं यहाँ पे, अगर आप ध्यान देंगे ये आए ऑर्डर्ड पेयर आपके पास 0 0 0 1 0 2, यानी कि अगर डोमेन में हमारे पास एलिमेंट कुछ भी थे 0 1 2 कुछ भी ले लो, 0 2 ले लो आप, और रेंज में आपके पास एलिमेंट थे 1 2 0 3, तो हर बार क्या हो रहा है, 0 ही 1 को मैप कर रहा है, 0 ही 2 को मैप कर रहा है, 0 ही 0 को मैप कर रहा है, जबकि ये चीज़ तो पॉसिबल है ही नहीं किसी फंक्शन में। फंक्शन में तो पहली कंडीशन यही होती है कि आपके पास जो डोमेन है उसका यूनिक इमेज होनी चाहिए। यहाँ पे आपके पास यूनिक इमेज निकल के आई, नहीं आई। यहाँ पे अगर यहाँ का एक एलिमेंट, यहाँ का एलिमेंट यहाँ मैप करे
और यही एलिमेंट यहाँ मैप कर देता तो आपके लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती, बट यहाँ उल्टा हो गया है। तो हम क्या कह सकते हैं, हेयर फर्स्ट एलिमेंट जीरो इज़ रिपीटिंग, जीरो बारी बारी रिपीट कर रहा है, इसका मतलब उनकी यूनिक इमेज नहीं है, तो एफ क्या होगा, एक फंक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12 एंड द लास्ट क्वेश्चन, लेट ए इज इक्वल टू, आपके पास गिवन है सेट एंड लेट एफ सच दैट ए की मैपिंग हो रही है आपकी नेचुरल नंबर्स में, यानी कि ए जो सेट गिवन है वो नेचुरल नंबर्स में मैप कर रहा है, जो डोमेन होगा वो तो आपके पास एट ए से है और जो रेंज है वो नेचुरल नंबर्स में है। बी डिफाइंड बाय एफ एन, एफ एन कैसे डिफाइन किया गया फंक्शन आपके पास, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, कि एन क्या का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा उसका, वो उसको डिफाइन करेगा एफ एन को, यानी कि उसके रिलेशन फंक्शन को। तो फाइंड द रेंज ऑफ एफ, आपको रेंज निकालनी है। तो एफ एन क्या है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर एन का, और एन किससे बिलोंग करता है, ए में, तो ए क्या वैल्यू क्या है आपके पास, 9, 10, 11, 12, 13। तो वैल्यू ऑफ एन जो क्या होंगी, वो सिर्फ यही वैल्यू हो सकती है, इसके अलावा नहीं होंगी। तो आपने यहाँ पे इनके फैक्टर्स निकाल लिए, तो आपने एन की वैल्यू 9 पुट करी तो हाईएस्ट फैक्टर कितना आया, 3। फिर हमने 10 पुट करी, यू विल गेट 5, 11 पुट करी, यू विल गेट 11, 12 पुट करी, यू विल गेट 3, 13 पुट करी, यू विल गेट 13। तो अगर हम इनके ऑर्डर पेयर लिखें तो इनके ऑर्डर पेयर क्या होंगे, इनके ऑर्डर पेयर होंगे 9, 3, 10, 5, इस तरह से ऑर्डर पेयर आते जाएंगे आपके पास। तो आपके पास रेंज कहाँ से आती है, रेंज आपके पास सेकंड एलिमेंट होता है, तो रेंज कहाँ मिलेगी आपको, 3, 5, 11, 3 एंड 13। तो आपके पास रेंज आ गई 3, 5, 11 एंड 13।